السلام علیکم، علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں شمائل ارشد۔ دیپالپور میں تحصیل کے علاقے حجرہ شاہ مقیم میں مرکزی رہنما مسلم لیگ نون کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر کی آمد۔ سجادہ نشین سید اعجاز علی گیلانی کے انتقال پر ان کے بیٹوں اور بھانجے سے اپنی اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جانب سے تعزیت کا اظہار کیا اور مزاروں پر بھی حاضری دی۔ محمد احمد بھٹی کی رپورٹ۔ مرکزی رہنما مسلم لیگ نون کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر کی شہر اولیاء حجرہ شاہ مقیم میں آمد۔ سجادہ نشین دربار عالیہ سید اعجاز علی گیلانی کے وصال پر ان کے بیٹوں سید اسد علی گیلانی، سید عارف علی گیلانی اور مدد علی گیلانی کے علاوہ بھانجے سید گفتار علی گیلانی سے شاہ مقیم ہاؤس میں ملاقات کے دوران اپنی اور وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف کی جانب سے تعزیت کا اظہار کیا۔ بعد ازاں حضرت سید بہاؤالدین گیلانی المعروف قلندر پاک اور حضرت سید شاہ محمد مقیم گیلانی کے قدیمی و تاریخی درباروں پر عقیدت و احترام، عاجزی و انکساری کے ساتھ مدفون سجادگان کی قبروں پر جا کر فاتحہ پڑھی۔ سجادہ نشین سید اسد علی گیلانی نے کیپٹن صفدر کو اپنی دعاؤں اور نیک تمناؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد احمد بھٹی، NTN نیوز، دیپالپور۔ ڈی آئی جی سکھر کیپٹن ریٹائرڈ فیصل عبداللہ چاچڑ ایک روزہ دورے پر گھوٹکی پہنچے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ ہیڈ کوارٹر پولیس میں SSP گھوٹکی سمیع اللہ سومرو نے استقبال کیا۔ ڈی آئی جی سکھر نے نو تعمیر ماڈل پولیس اسٹیشن میرپور کا افتتاح بھی کیا۔ اس حوالے سے رانا اقبال کی رپورٹ۔ ڈپٹی انسپکٹر جنرل آف پولیس سکھر رینج کیپٹن ریٹائرڈ فیصل عبداللہ چاچڑ ایک روزہ دورے پر گھوٹکی پہنچے۔ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میرپور ماتھیلو میں SSP گھوٹکی سمیع اللہ سومرو کی جانب سے ان کا والانہ استقبال کیا گیا۔ ڈی آئی جی سکھر فیصل عبداللہ چاچڑ نے نو تعمیر ماڈل پولیس اسٹیشن کی بلڈنگ کا باقاعدہ ربن کاٹ کر افتتاح بھی کیا۔ اس موقع پر SSP گھوٹکی سمیع اللہ سومرو، DSP سب ڈویژن رمتی، DSP اباڑو، DSP میرپور ماتھیلو، DSP گھوٹکی بھی کیمرہ تھے۔ افتتاحی تقریب کے بعد خصوصی دعائیں بھی مانگی اور ڈی آئی جی سکھر فیصل عبداللہ چاچڑ نے نئی تعمیر ہونے والی ماڈل پولیس اسٹیشن کی بلڈنگ اور فراہم کردہ سہولیات کا بھی جائزہ لیا۔ اس موقع پر ڈی آئی جی سکھر کا کہنا تھا کہ ماڈل تھانہ عوام کی خدمت کے جذبے کے تحت جدید پولیسنگ اصولوں کے مطابق تعمیر کیا گیا ہے، جس میں استقبالیہ ڈیسک، ویٹنگ روم، خواتین اور بچوں کے لیے علیحدہ ڈیسک کا بھی قیام ہے، CCTV مانیٹرنگ روم، IT لیب اور دیگر سہولیات شامل ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ماڈل پولیس اسٹیشن کے قیام سے عوام کے مسائل کو بنیادی اور ترجیحی بنیادوں پر حل کرتے ہوئے پولیس اور عوام کے درمیان اتحاد کو فروغ دینے سمیت مینول سسٹم کو تبدیل کر کے جدید سہولیات فراہم کرنا ہے۔ کیمرہ مین ٹیم کیمرہ رانا اقبال، NTN نیوز گوٹ۔ سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر FIA امیگریشن کی کارروائی۔ قاتل کے مقدمے میں ملوث 2 ملزمان کی بیرون ملک فرار ہونے کی کوشش ناکام بنا دی۔ اس حوالے سے محمد عرفان میو کی رپورٹ۔ سیالکوٹ سمڑیال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر FIA امیگریشن کی ایئرپورٹ پر بڑی کارروائی۔ قتل کے مقدمہ میں ملوث 2 ملزمان کی بیرون ملک فرار کی کوشش ناکام کر دی۔ گرفتار ملزمان کی شناخت جمشید اشرف اور فیض جمشید کے نام سے ہوئی۔ ملزمان نے فلائٹ نمبر G9533 کے ذریعے بیرون ملک فرار کی کوشش کی تھی۔ ملزمان تھانہ ٹانڈا، ضلع گجرات کو قتل کے مقدمے میں مطلوب تھے۔ ملزمان کے خلاف 2 دن قبل ہی مقدمہ درج ہوا تھا۔ ملزمان کو تھانہ ٹانڈا گجرات کی جانب سے اطلاع ملنے پر گرفتار کیا گیا۔ ملزمان کو ویٹنگ لان سے گرفتار کیا گیا۔ ملزمان کو گرفتار کر کے متعلقہ پولیس احکام کے حوالے کر دیا گیا۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ محمد عرفان، NTN نیوز سمڑیال۔ دریائے چناب کے ٹول پلازہ کی سڑک عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ انتظامیہ کی چشم پوشی کے باعث چھوٹی بڑی گاڑیوں کا لاکھوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں بلال وڑائچ۔ دریائے چناب کے ٹول پلازے کی چند گز سڑک عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ انتظامیہ کی چشم پوشی کے باعث چھوٹی بڑی گاڑیوں کا اس کی وجہ سے لاکھوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے۔ جب بھی کوئی کار ٹول ٹیکس ادا کرنے کے لیے بریک لگاتی ہے تو اس کی باڈی سڑک سے ٹچ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے روزانہ کی بنیاد پر گاڑیوں کا نقصان ہو رہا ہے۔ لاکھوں روپے روزانہ ریونیو اکٹھا ہونے کے باوجود ضلع انتظامیہ چند گز سڑک کو مرمت نہیں کر رہی۔ اہل علاقہ نے ڈپٹی کمشنر چنیوٹ صفی اللہ گوندل سے پرزور اپیل کی ہے کہ برائے مہربانی چند گز سڑک کو مرمت کیا جائے اور دریائے چناب کے پل کی اسٹریٹ لائٹس کو بھی فعال کیا جائے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ بلال وڑیچ، NTN نیوز چناب نگر۔ آل پاکستان پرائیویٹ اسکول اینڈ کالجز ایسوسی ایشن کی نئی ڈسٹرکٹ باڈی 2025-2026 کے لیے عہدیداران کا چناؤ اور تقریب حلف برداری
पीर महल में मुनाकिद की गई। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एजुकेशन टोबा टेक समेत अहम शख्सियात ने इसमें शिरकत की। मजीद तफसीलात बता रही हैं पीर महल से नैयर शिरासी। बिल्कुल पीर महल में आज ऑल पाकिस्तान स्कूल एंड कॉलेज प्राइवेट एसोसिएशन का प्रोग्राम का इनकाद किया गया है, जिसमें जो है नई मुंतखब होने वाली जिला भर से जो बॉडी है उनका चुनाव करके उनसे हलफ बर्दारी तकरीब भी की गई है, जिसमें जो है सदर जो है पीर महल से तल्लक रखने वाले माहिर तालीम गुलाम नबी तारिक हैं और जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अवैस हैं। इस तकरीब के रुए रवा और जो चीफ गेस्ट हैं वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है मैडम राहिला जमील साहबा, वो मैडम राहिला जमील साहब से पूछेंगे कि इस तकरीब के बारे में और मजीद असातिज़ा के लिए क्या मैसेज देंगे कि जो आने वाले वक्त में तालीम के शोबे में बेहतरी ला सके। जी मैडम, क्या कहेंगे आप? प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन उनके आज 9 मुंतखब उहदेदारान की तकरीब हलफबर्दारी थी, जिसमें आके बहुत अच्छा महसूस हुआ। हमारी एसोसिएशन का मेन मकसद है क्वालिटी एजुकेशन। तो हम अपने आइडियाज़, अपने एक्सपीरियंसेस अपने दोस्तों से शेयर करते हैं और हमारे दोस्तों के आने वाले जो मसाइल हैं हम उनको भी अहकाम वाला तक पहुंचाते हैं, ताकि हम क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर काम करें और अच्छे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और लॉयर्स जो है वो प्रोड्यूस करें। आज जी बिल्कुल जिस तरह आपने नौ मुंतखब प्रेसिडेंट गुलाम नबी तारिक साहब की बात सुनी, उनका ये कहना है ताकि आने वाले वक्त में ऐसी तालीम, ऐसे नौजवान हो हमारे माशरे में जो मुल्क और दुनिया में पूरी कौम का नाम रोशन कर सके। बांस पाकिस्तान में एक फ़ायदेमंद और तेज़ी से बढ़ने वाली फसल है। इसे तामीरात, फर्नीचर, कागज़, चारपाई, छतरी और सजावट की अशिया में इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान में बांस की काश्त फरवरी से मई या अगस्त से सितंबर में की जाती है। बांस के बारे में बता रहे हैं सराय मुगल पत्तोकी से मोहम्मद हसीब। बांस पाकिस्तान में एक फ़ायदेमंद तेज़ी से बढ़ने वाली फसल है जो कमर्शियल सतह पर बहुत फ़ायदा मुनाफा बख्श साबित हो सकता है। इससे तामीरात, फर्नीचर, कागजी, चारपाई, छतरी और सजावट की सियासत में इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान में बांस की काश्त फरवरी से मई या अगस्त तक सितंबर में की जाती है। बांस बेहतरीन ताज के लिए मौसम बहार में सबसे मौजूद है। इसके लिए जरखेज, अच्छी निकासी वाली हल्की दुआमी नमी रखने वाली ज़मीन बेहतर है। बांस का बजरिया रूट्स या कटिंग के जरिए की जाती है। तैयार करते हैं, रंग लगाते हैं और इसको सीधा करते हैं। फिर ये बाहर जाता है, मुल्तान, डेरा गाजी खान, पेशावर, कराची, हैदराबाद, हर जगह पे पूरे पाकिस्तान में ये बांस सप्लाई होता है। बांस को इब्तदाई 3 महीने हफ्ते में 2 बार पानी दें। साल में 2 बार गोबर की खाद डालें। जानवरों से बचाव के लिए बांस के करीब बाड़ लगाएं। बांस 3 साल बाद मुकम्मल तैयार होता है। इसके बाद हर साल नई शाखें निकलती हैं। एक पौधे से 10 से 20 बांस हासिल हो सकते हैं। 1 एकड़ से सालाना 5 से 10 लाख रुपए तक आमदनी मुमकिन है। बांस एक बार लगाने के बाद 30 साल तक पैदावार देता है। बांस की लकड़ी टेढ़ी मेढ़ी होती है, जिसे भट्टी में गर्म करके एक मखसूस सांचे के जरिए सीधा किया जाता है। मोहम्मद हसीब आबद हंजरा, NTN न्यूज़, सराय मुगल पत्तोकी। गर्म मौसम में ठंड के मज़े। जैसे ही गर्मी ने जोर पकड़ा, सयाहों ने फोर्ट मंडो का रुख कर लिया। सयाह ठंडे मौसम से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। इसी पर मज़ीद जान लेते हैं वहाँ मौजूद नुमाइंदा NTN न्यूज़ मोहम्मद जावेद जतोई से। जी जावेद। जी नादरीन, मैं इस वक्त मौजूद है सियाती मकाम फोर्ट मंडो पे, जिसे जनूबी पंजाब का मरी भी कहा जाता है। यहाँ पर जो है ना दर्जा हरारत बहुत कम होता है। आप मेरे अकब में देख सकते हैं यहाँ पर बादल छाए हुए हैं। अगर मैं आपको बताता चलूँ, जैसे ही गर्मी ने जोर पकड़ा तो लोगों ने जो है ना फोर्ट मंडो का रुख कर लिया है। यहाँ पर वो अपनी फैमिलीज़ के साथ भी आए हुए हैं। अगर मैं दर्जा हरारत की बात करता चलूँ, यहाँ का जो दर्जा हरारत है तकरीबन 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक है। अगर अदर दूसरे इलाकों की बात करता चलूँ, वहाँ का जो दर्जा हरारत तकरीबन 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड है। यहाँ का मौसम सर्द है। इस वक्त जो है ना हमारे साथ श्याम मौजूद है, हम इनसे जानेंगे ये किस तरह एंजॉय कर रहे हैं। प्यारे दोस्त, सारे दोस्तों को मेरा सलाम हो गया। माशाल्लाह हम फोर्ट मंडो में आए हुए हैं। माशाल्लाह इधर बहुत अच्छा माहौल है। माशाल्लाह काफ़ी ही अच्छा माहौल है। हम पहले सोच रहे थे कि हम मरी चले जाएं, उधर घूमें फिरें। माशाल्लाह इधर जब आए तो हमें पहले भी काफ़ी आते रहे हैं। हम माशाल्लाह मुजफ्फरगढ़ शाहजमाल से हैं। बाकी सारे दोस्त, काफ़ी दोस्तों को हम कहना चाहते हैं कि वो इधर फोर्ट मंडो का चक्कर लगाएं। और माशाल्लाह बहुत ही अच्छा माहौल है और VIP माहौल है। और यहाँ की जो आवाम है माशाल्लाह बहुत ही रिलैक्स हो रही है और बहुत प्रोग्राम, मतलब जितने भी लोग आए हुए हैं बहुत अच्छे हैं उनकी। बाकी सारे जैसे कि आपने देखा है हमारे साथ श्याम मौजूद था, उनको भी बात सुनी। उनका कहना यही था, हम शाह जमाल से आए हुए हैं, तकरीबन 10 साल से आ रहे हैं, फैमिलीज़ के साथ भी आ रहे हैं। यहाँ का मौसम बहुत अच्छा होता है। गर्मी जो है ना, गर्मी को ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे जो है ना आप देख रहे हैं यहाँ का दर्जा हरारत भी कम है। मेरी जो है ना इलाके के लोगों को, दूसरे लोगों को यही पैगाम है, यहाँ पर आएँ, नारान कागान जाने की बजाय यहाँ का रुख करें। यहाँ का मौसम भी होता है अच्छा है और एंजॉय करें। जी
जनूबी पंजाब समेत अलीपुर में भी शदीद गर्मी का राज है। अलीपुर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 47 डिग्री तक पहुंचने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इसी हवाले से शहरियों की बड़ी तादाद ने मुख्तलिफ स्विमिंग पूल्स का भी रुख कर लिया है। देखते हैं हम्माद रजा की रिपोर्ट। जनूबी पंजाब समेत अलीपुर में भी शदीद गर्मी का राज है। आज महकमा मौसमियात के मुताबिक दर्जा हरारत 32 डिग्री से 47 डिग्री तक रहने वाला है, जबकि बिजली की आंख मचोली से परेशान शहरियों की बड़ी तादाद ने मुख्तलिफ स्विमिंग पूल्स का रुख कर लिया। शहरियों ने दोस्तों और बच्चों के हमरा शदीद गर्मी और हवस के मौसम को अपने अंदाज में एंजॉय करना शुरू कर दिया। शहरियों ने मुख्तलिफ दोस्तों को इकट्ठा करके फार्म हाउस के तालाब में ठंडे ठंडे पानी से डुबकियां लगाईं और मुख्तलिफ आम की वैरायटी से लुत्फ अंदोज होते रहे। बादशाह दोस्तों ने चटपटे खाने एंजॉय किए। शहरियों का कहना था इस शदीद हवस के मौसम को कम करने के लिए स्विमिंग पूल्स का रुख किया है ताकि गर्मी की शिद्दत को कम किया जा सके। कैमरा टीम के साथ हम्माद रजा, NTN न्यूज़, अलीपुर। हारूनाबाद में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही शहरियों ने सरदाई पॉइंट्स का रुख कर लिया। ठंडे मशरूबात पीकर गर्मी की शिद्दत को कम कर रहे हैं। हमारे नुमाइंदे सज्जाद वट्टू इस वक्त सरदाई पॉइंट पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जी सज्जाद। जी बिल्कुल, हारूनाबाद में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही हारूनाबाद के शहरियों ने सरदाई पॉइंट का रुख कर लिया है। तो मैं इस वक्त एक सरदाई पॉइंट पर मौजूद हूँ जहाँ पर शहरी सरदाई पीकर गर्मी की शिद्दत को कम कर रहे हैं। तो इस हवाले से मेरे साथ बात करने के लिए एक शहरी मौजूद है। मज़ीद उनसे जानते हैं कि वो यहाँ आकर कैसे फील कर रहे हैं। जी यकीन करें, गर्मी की शिद्दत बेहद इजाफा हो चुका है। इतना इजाफा है बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। गर्मी की शिद्दत को दूर करने के लिए ठंडे मशरूबात और सरदाई के अलावा इस कोई हल नहीं है। यकीन करें, सरदाई पीते हैं तो गर्मी की शिद्दत बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। जी, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, शहरी का कहना है कि सरदाई पीकर वो कम कर रहे हैं और तिब्बी माहिरीन का कहना है कि गर्मी के मौसम में गैर ज़रूरी घरों से बाहर ना निकलें और ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करें। जी, तलंबा शहर और गिरदनवाह में शदीद गर्मी और हब्स का राज है। गर्मी और हब्स से सताए बड़ों के साथ साथ बच्चों ने भी गर्म ट्यूबवेल्स का रुख कर लिया है, जहां पर बच्चे और बड़े ताज़ा और ठंडे पानी में नहाकर खूब इंजॉय कर रहे हैं। मजीद इस हवाले से जानते हैं तलंबा से NTN न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद सलीम से, जो कि इस वक्त ट्यूबवेल में बच्चों के साथ मौजूद हैं। जी सलीम। जी बिल्कुल, तलंबा शहर और गिरदनवाह में शदीद गर्मी की वजह से छोटे और बड़े उन्हें नहरों की बजाय ट्यूबवेलों को रुख कर ले। गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए इस वक्त मेरे साथ एक बच्चा मौजूद है। मजीद उनसे जानते हैं कि वो ट्यूबवेल में नहाकर कैसे एंजॉय कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं अपने दोस्तों के साथ ट्यूबवेल पर एंजॉय कर रहा हूँ, जो कि ये ठंडा और ताज़ा पानी है, जो अल्लाह ताला की नेमत है, जो गर्मी को जोर को तोड़ती है। इसलिए हम नहरों को इसलिए नहीं नहाते क्योंकि वो गटरों का गंदा पानी होता है। मैं अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे नहाने आया हूँ और खूब इंजॉय कर रहा हूँ, जो कि ये अल्लाह ताला की नेमत है और गर्मी को जोर को तोड़ता है। जैसा कि बच्चों की आपने बात सुनी, छोटे हो या बड़े, तो ट्यूबवेल के ताज़ा पानी में नहाकर शदीद इंजॉय कर रहे हैं। सादिकाबाद में सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद सफाई के शोबे में ईद के मौके पर बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले वर्कर्स को खराज तहसीन पेश करना था। मजीद रिपोर्ट कर रहे हैं रियाज बुखारी। ईद के मौके पर शानदार कारकर्दगी पर 932 सफाई करने वाले हीरोज को खिराज तहसीन पेश करने के लिए निजी मैरिज हॉल में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में इन 932 हीरोज को 10-10 हज़ार रुपए के चेक, मिठाइयाँ और फूलों से नवाजा गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी साबिक MPA चौधरी मोहम्मद शफीक, सरदार ओन खान लगारी, असिस्टेंट कमिश्नर नदीम बलोच और CO बल्दिया जोहेब खान लगारी थे। इसके अलावा साबिक चेयरमैन बल्दिया मियाँ बशीर अहमद, सदर गल्ला मंडी चौधरी खलील और SB इंजीनियरिंग के MD हाफिज गुलाम गौस ने भी शिरकत की। पंजाब ने ईद के मौका पर शानदार काम किया है। पूरे पंजाब में सादिकाबाद से लेकर मरी तक पूरा पंजाब जो है साफ सुथरा नजर आया। तो मैं समझता हूँ कि ये सब कुछ वज़ीर आला के विजन के मुताबिक था और वज़ीर आला ने इनको हीरोज़ का खिताब दिया। तो आज इन हीरोज़ की खिदमात को देखते हुए उन्होंने हर हीरो के लिए 10-10 हज़ार रुपये का इनाम दिया। ये तकरीब न सिर्फ सफाई की मेहनत कशों की हौसला अफजाई का जरिया बनी, बल्कि ये पैगाम भी दे गई कि पंजाब की तरक्की, सुथराई और खूबसूरती में हर एक का किरदार अहम है। कैमरामैन टीम के साथ रियाज बुखारी, NTN न्यूज़, सादिकाबाद।
जतोई के सहाफ़ी को ताकतवर माफिया के खिलाफ खबर लगाना महंगा पड़ गया। सीनियर सहाफ़ी अकरम खान गोपांग के खिलाफ ज़िले इंतज़ामिया ने पीका एक्ट के तहत मन घड़त मुकदमा दर्ज करवा दिया। मौज़िज़ अदालत ने सहाफ़ी को बाइज्जत बरी करके मुकदमा डिस्चार्ज करने का हुक्म दे दिया। मज़ीद देखते हैं जतोई से हमारे नुमाइंदे मलिक यामीन की ये रिपोर्ट। जतोई के इलाका शहर सुल्तान के सीनियर सहाफ़ी अकरम खान गोपांग को शाही अफसरान को आईना दिखाना महंगा पड़ गया। जिसने ताकतवर माफिया के खिलाफ खबर लगाई तो खबर लगाना इसका जुर्म बन गया। ज़िला इंतज़ामिया के अफसरान ने असिस्टेंट कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ इरफान हिजरा की मुद्दत में करप्शन को छुपाने और अपने काले करतूतों पर पर्दा डालने के लिए सहाफ़ी के खिलाफ मन गढ़ंत मुकदमा दर्ज करवा दिया। सहाफ़ी का जुर्म सिर्फ इतना है कि इसने करप्ट अफसरान की करप्शन अयां की तो करप्ट अफसरान ने सच की आवाज़ को दबाने के लिए पीका एक्ट को बुनियाद बनाकर मुकदमा दर्ज कराया। ज़िले इंतज़ामिया की घिनौनी हरकत बेगुनाह सहाफ़ी को इंसाफ दिलवाने में सहाफ़ती कम्यूनिटी एक पेज पर। सदर तहसील प्रेस क्लब जतोई वज़ीर अहमद मलिक की काबिज़ से जतोई की मुअज़्ज़ज़ अदालत ने सहाफ़ी को बाइज्जत बरी करके मन घड़त मुकदमा डिस्चार्ज करने का हुक्म दे दिया। कैमरा टीम के साथ मलिक यामीन वरिया, NTN न्यूज़ जतोई। तोबा टेक्सिंग में रेडी बानों का राज, गलियां और बाजार बन गए तंग। वज़ीर आला पंजाब के मंसूबे नाकाम, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। इफ्तिखार सिद्धू की रिपोर्ट। तोबा टेक्सिंग शहर में रेडी बानों ने सड़कों, गलियों और फुटपाथों पर कब्जा जमा रखा है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। खवातीन, बुजुर्ग और बच्चे सड़कों पर चलने से कासर हैं। दूसरी जानब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर रेडी बानों के लिए मखसूस बाजार कायम किए गए थे ताकि इन्हें शहर से बाहर मुंतकिल किया जा सके, लेकिन ये मनसूबा भी बेसूद साबित हुआ। शहरियों ने इंकशाफ किया है कि इन बाजारों के नाम पर बाज जालसाजों ने रेडी बानों को वज़ीर आला की तस्वीर लगाकर मुबैना तौर पर लाखों रुपए का चूना लगाया। शहरियों ने TMA अमले पर इल्जाम किया कि वो रोजाना की बुनियाद पर रेडी बानों से मुबैना तौर पर रिश्वत लेकर शहर के अहम मकामात पर कब्जा कराने में मुआवनत करते हैं। बंदों का तो एक तरफ, औरतों का वहाँ पर गुजरना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। उसकी वजह यह है कि TMA वाले जो हैं वो रेडी वालों से, वो रक्षा वालों से वो मंथली लेते हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते। अगर कोई बड़ा अफसर जो है वहाँ पर जाता है तो वक्ती तौर पर तो वो रेडी वाले और जो रक्षे वाले हैं वो साइड पर हो जाते हैं। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि सारे निजाम का नोटिस लिया जाए और जुम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। कैमरामैन अली हैदर के साथ इफ्तिखार अहमद सिद्धू, NTN न्यूज़, तोबा टेक्सिंग। इलाकाई खबरों से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप NTN न्यूज़ के साथ रहिए।